Good morning, my dear students. Welcome back to your online classes. As we already studied chapter number 6, fractions, some concepts of fractions, like fraction, unlike fraction. Okay, and we already started our exercise 6.1, but there are some questions which are left in between. In my first video of fraction, I only completed the exercise up to one question, but after that I started with the 7th question. This happens due to a mistake. I am just repeating the questions in between. Okay, so let's start with the questions that are left out. Exercise 6.1, question number 2. Question number 1 is already covered in the first video of this chapter. Question number 2 is left in between. So let's start with question number 2. Just open your book and just start reading the question from your book. Write the first 5 equivalent fraction. दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि जो भी आपको डिजिट गिवन है इसके आपको फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट नंबर लिखने हैं. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. जब हम कभी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना होता है हम क्या करते हैं, इसमें टेबल्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं. ऊपर 9 का नीचे 11 का टेबल लिखना स्टार्ट कर देंगे तो हमें फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएंगे. या तो आप टेबल लिखना स्टार्ट कर दीजिए या आप मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दीजिए. किसी भी नंबर की आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए. जैसे मैंने यहाँ पे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दी है, फिर मैं ऊपर नीचे तीनों जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, फिर मैं ऊपर नीचे दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, देन 5, देन 6. मुझे 5 चाहिए थे. 1 2 3 4 5. अब मैं आंसर निकाल लेती हूँ. 9 2 जा 18, 11 2 जा 22, 9 3 जा 27, 11 3 जा 33, 9 4 जा 36, 11 4 जा 44, 9 5 जा 45, 11 5 जा 55, 9 6 जा 54 और 11 6 जा 66. These are 5 equivalent fraction to this number. Next part, that is B part, 4/5. Similarly we will proceed with the next part, that is 4/5. आप चाहे तो टेबल लिखना स्टार्ट कर सकते हैं. ऊपर 4 का लिख दीजिए, नीचे 5 का लिख दीजिए, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा. Let's start multiplying. Firstly we will multiply by 2, then 3, then 4, 5, and at the end with 6. Let's find out the answer. 4 2 ja 8, 5 2 ja 10, 4 3 ja 12, 5 3 ja 15, 4 4 ja 16, 5 4 ja 20, 4 5 ja 20, 5 5 ja 25, 4 6 ja 24, 5 6 ja 30. That is the answer. These are the 5 equivalent fractions to this number. Now let's come to the next part. Okay, next part is 5/13. अभी मैंने आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके दिखाई है. नेक्स्ट पार्ट से मैं आपको डायरेक्टली लिखना सिखाऊंगी कि आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं. इतनी लंबी कैलकुलेशन करे बिना, इतने लंबा शो करे बिना आप डायरेक्टली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं. मुझे कितने लिखने हैं? 5 लिखने हैं. ओके, 1 2 3 4 5. आप कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं. पाँचों इक्वल है तो मैंने इक्वल्स टू का साइन लगा के लिख दिया. आप कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज़ विद दैट. ऊपर मैं 5 का टेबल लिखना स्टार्ट कर दूंगी. यहाँ पे भी तो मेरा टेबल ही चल रहा है. 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45. सिमिलरली मैं यहाँ पे भी टेबल की तरह लिखना स्टार्ट कर दूंगी. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 15, 5 4 जा 20, 5 5 25, 5 6 जा 30. नीचे 13 का टेबल लिखना स्टार्ट कर दूंगी. 13 में जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65 और 13 6 जा 78. And that's the question number 2, part C. Now next part, that is D part. What is D part? 3/7. Similarly we will go with the 3/7. 2 3 4 and 5.
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 7 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42. And these are the 5 equivalent fraction to this number. Next part, that is E part. What is E part? 2 upon 9. 1 2 3 4 and 5. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54. These are the 5 equivalent fraction to this number. Next part is F, and the last part of this question is in homework. You have to do that part in homework. Okay, I hope this is clear to you all. Now let's come to the next question, that is question number 3. Question number 3 of exercise 6.2. Okay, let's start with question number 3. Just read it from your book, what is written in your book in question number 3, and we will start then question number 3. What is asked in question number 3 from you? I am not writing down the question. You have to read that from your book. Convert the following fraction into their lowest term. आपको इन सारे टर्म्स को इनकी लोवेस्ट टर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मीन्स ऐसी फॉर्म जहाँ पे ये ऊपर नीचे और ज़्यादा एक दूसरे से कट ना हो सके, या किसी सेम टेबल से ऊपर नीचे डिवाइड ना हो सके, ऐसी कोई टर्म आपको फाइंड आउट करनी है. बहुत सिंपल है. सबसे पहले 0 से 0 कट हो जाएगी. अब मुझे एक ऐसा टेबल ढूंढना है जिससे 25 और 36 दोनों कट हो सके. तो ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 25 और 36 दोनों आते हो. सो दिस इज़ द लोवेस्ट टर्म ऑफ दिस फॉर्म. ओके, दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बी पार्ट. व्हाट इज बी पार्ट? रीड इट फ्रॉम योर बुक. बी पार्ट इज 175 अपॉन 325. अब इसको हम कट करना ऊपर स्टार्ट करेंगे. मैं इसको सबसे पहले किससे कट कर दूँगी? 5 से कट कर लेती हूँ. 5 3 जा 15, 2 कैरी गया, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 2 कैरी गया, 5 5 25. अगेन मैं इसे 5 से कट कर सकती हूँ. 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. कोई ऐसा टेबल जो उसमें 7 और 13 दोनों आते हों, ऐसा कोई टेबल नहीं है. सो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट. दिस इज द आंसर. What is next part? 220 upon 750. 220 and 750. Now let's start with the zeros. हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे ज़ीरो को कट कर लेंगे. नाउ वी विल फाइंड एनी टेबल जिसके अंदर 22 और 75 दोनों आते हो. तो ऐसा कोई टेबल नहीं है, बिकॉज 22 से 1 2 और 11 के टेबल में आता है, और उन तीनों से ही 75 नहीं कट हो सकता. तो ऐसा कोई टेबल नहीं है जिससे ये नंबर ऊपर नीचे सेम टेबल से कट हो सके. सेम टेबल की बात कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंट की बात नहीं कर रहे हैं. एक ऐसा सेम नंबर जिससे ये दोनों ही कट हो जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. इज 820 अपॉन 1600. लेट्स मूव विद द ज़ीरो. व्हाट वी गेट? 82 अपॉन 160. किससे कट करेंगे? इसे 2 से कट कर लेते हैं. 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0. व्हाट वी गेट? 41 अपॉन 80. ऐसा कोई नंबर जिससे 41 और 80 दोनों कट हो जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है. सो 41 अपॉन 80 इज द आंसर. नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ई. व्हाट इज ई पार्ट? 57 अपॉन 36. दैट इज आर ई पार्ट. ऐसा कोई टेबल जिससे 57 और 36 दोनों डिवाइड हो जाए. मुझे ऐसा टेबल ढूंढना है जिससे 57 और 36 दोनों डिवाइड हो जाए. ओके, दिस इज 76 नॉट 36. ओके, ऐसा कोई टेबल जिससे 57 और 76 दोनों कट हो जाए. तो ऐसा टेबल 19 है. 19 3 जा 57, 19 4 जा 76. सो द आंसर इज 3/4. 3/4 अब किसी भी सेम टेबल से कट नहीं हो सकता. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एफ. व्हाट इज एफ पार्ट? 22 अपॉन 121. ऐसा टेबल जिससे ये दोनों कट हो जाए 11. 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11. तो 2 अपॉन 11 इज द आंसर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. रीड इट फ्रॉम योर बुक. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, फिल अप सही है आपके.
यहाँ पे कुछ बॉक्सेस एम्प्टी हैं, उन बॉक्सेस को आपको क्या करना है, कवर अप करना है, फिल करना है। ओके, बेसिकली इसमें करना क्या है, ये सारे लाइक फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। इन लाइक फ्रैक्शंस के बीच में आपको कनेक्शन ढूंढना है और उस कनेक्शन से आप क्या करेंगे, इनको फिल करना स्टार्ट करेंगे। अब मैं सबसे पहले तो अगर ये सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं तो इनकी लोवेस्ट टर्म हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। लोवेस्ट टर्म हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं 32/48 की क्या निकालूंगी, लोवेस्ट टर्म निकालूंगी। 32/48 की लोवेस्ट टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं क्या आएगी। ओके, आप चाहें तो रफ में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक बड़े टेबल से काट रही हूँ, आप चाहें तो 2 से काट सकते हैं। 2 से इसको कट करना स्टार्ट करेंगे। 2 1 2, 2 6 12, इस तरीके से। मैं इसको डायरेक्ट 16 से काट रही हूँ। 16 2 32, 16 3 48। सो द लोवेस्ट टर्म इज़ 2/3। अब मैं यहाँ पे रफ वर्क में आपको एक बार दिखा देती हूँ। 32/48। आप 2 से कट करेंगे 16 टाइम्स, 2 से कट करेंगे 24 टाइम्स, 2 से कट करेंगे 8 टाइम्स, 2 से कट करेंगे 12 टाइम्स। 2 4 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा। सो द आंसर इज़ 2/3। आंसर इज़ 2/3। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक बड़े टेबल से कट कर दिया है, आप छोटे टेबल से कट करके साइड में देख सकते हैं। 2/3 आंसर आएगा। ओके, सो आंसर इज़ 2/3। 2 1 जा। अब मैं देखूंगी कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। जो कनेक्शन न्यूमरेटर के बीच में होगा वही कनेक्शन डिनोमिनेटर के बीच में होगा। आपको सबको पता है, जितना मल्टीप्लाई ऊपर करती हूँ उतना ही मल्टीप्लाई नीचे करती हूँ, जितना डिवाइड ऊपर करती हूँ उतना ही डिवाइड नीचे करती हूँ। यही लाइक फ्रैक्शंस में होता है। तो कनेक्शन ढूंढना है मुझे। जो न्यूमरेटर के साथ कनेक्शन बनेगा सेम वही डिनोमिनेटर के साथ होगा। जो कनेक्शन डिनोमिनेटर के साथ होगा वही सेम न्यूमरेटर के साथ होगा। दैट मीन्स जितनी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगी उतनी ही डिनोमिनेटर में करनी पड़ेगी, या जितनी डिनोमिनेटर में करी हुई होगी उतनी ही न्यूमरेटर में करनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी कि 2 1 जा 2। सिमिलरली 3 1 जा 3। 1 की मल्टीप्लाई हुई है सिर्फ। यहाँ पे 2 से 30 तक पहुँचने में कितने की मल्टीप्लाई हुई है मेरी, 15 की। कितने की हुई है, 15 की। 2 से 30 तक पहुँचने में कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 15 की। तो 3 से आंसर निकालने के लिए भी मुझे कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 15 की। ऊपर 15 की मल्टीप्लाई हुई है तो नीचे भी 15 की होगी, तभी मुझे आंसर मिलेगा। सो व्हाट इज़ द आंसर, 45। 45 इज़ द आंसर। नेक्स्ट पार्ट में और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। 3/5 इज इक्वल्स टू 24 और डैश अपॉन 60। ये ऑलरेडी लोवेस्ट टर्म में है तो मुझे कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 में कितने की मल्टीप्लाई हुई है 24 बनाने के लिए, 8 की। 3 8 जा 24। तो 5 में भी कितने की मल्टीप्लाई करूँगी, 8 की। तो 5 8 जा 40। वी गेट द आंसर। 5 में कितने की मल्टीप्लाई हुई है 60 तक पहुंचने के लिए, 12 की। तो न्यूमरेटर निकालने के लिए भी कितने की मल्टीप्लाई होगी, 12 की। सो वी गेट द आंसर 36। ओके, देयर वी फिल्ड आवर gaps which is asked from us. Now the next question is question number 5. What is asked in the question number 5? Read it from the book. कंपेयर करना है आपको, कंपेयर करके आपको इन साइन का यूज़ करना है। आपको बताना है कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, या कौन सी टर्म्स इक्वल है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। 2/5 कंपेयर करना है किससे, 1/7 से। ऐसी जगह पे मैं क्या करती हूँ, मैं एलसीएम लेने की कोशिश करती हूँ, या मैं डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम बनाऊँगी, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इधर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी और इधर 5 से, जिससे मेरा डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 35। मैं सिर्फ तभी दो फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकती हूँ तब मेरा डिनोमिनेटर सेम हो, तभी मैं ईजिली कंपेयर कर सकती हूँ। आप उसके बिना नहीं बता पाएंगे, बिना डिनोमिनेटर सेम करे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। इधर मैं 7 की मल्टीप्लाई करती हूँ और इधर 5 की। व्हाट विल आई गेट, 2 7 जा 14, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35। अब आपको क्लियरली दिख रहा है दोनों में से बड़ा कौन सा है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर कंपेयर करना है। बड़ा कौन सा है, 14 वाला। दैट मीन्स 2/5 इज ग्रेटर देन 1/7। बी पार्ट, 5/11 कंपेयर टू 4/13। आप एलसीएम भी ले सकते हैं, या आप डायरेक्टली इधर के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इधर और इधर के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, आपका एलसीएम करेक्ट आ जाएगा। ओके, 5/11 × 13 × 13
कंपेयर करना है 4/13 इंटू 11 इंटू 11. ओके, what will answer I will get here? 65/143. और कंपेयर करना किससे? 44/143. 13 5 जो 65, 11 4 जो 44, 13 11 जो 143, 13 11 जो 143. कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा दिख रहा है? 65 वाला बड़ा दिख रहा है. दैट मीन्स 5/11 इज ग्रेटर देन 4/13. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सी पार्ट. Read it from your book. What is C part? 7/14 compared with 1/2. 7/14 compared with 1/2. देखिए, अब चाहें तो दोनों को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, ठीक है, या सिर्फ इधर 7 की मल्टीप्लाई करके भी डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, या आप इधर डिवाइड करके भी डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं. 7 1 जो 7, 7 2 जो 14, 1/2 आ जाएगा. ओके, आपको कोई भी प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं. मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही यूज़ कर रही हूँ, डिवाइड नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे अलग अलग प्रोसेस से. तो मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस ही आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ. मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये क्या बन जाएगा? 14. डिनोमिनेटर सेम हो गया मेरा. न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लेते हैं, क्या है? सेम. दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? इक्वल्स टू का साइन आएगा. लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3/18 कंपेयर्ड विथ 3/9. आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन ना यूज़ करके मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ. ओके, 3 1 जो 3, 3 3 जो 9, 3 1 जो 3, 3 6 जो 18. What will I get? 1/6 and 1/3. ओके, अब मेरे लिए ईजी हो गया इनका डिनोमिनेटर सेम करना, ठीक है. अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दूँगी तो 6 मिल जाएगा मुझे. मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा. मिल गया मुझे डिनोमिनेटर में 6. डिनोमिनेटर सेम हो गया. न्यूमरेटर कंपेयर कर लेती हूँ तो ये वाली टर्म 2/6 बड़ा है. दैट मीन्स 3/9 बड़ा है 3/18 से. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. एग्जैक्टली जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा था, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. सबसे पहले इन सारे जितने भी मुझे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं सबका एलसीएम लूँगी. एलसीएम लेके इनका डिनोमिनेटर सेम करूँगी. मुझे कौन कौन से फ्रैक्शंस दिए हुए हैं? 1/3, 2/5, 4/15, 3/10, 5/20 and 6/21. Now let me take the LCM of that. 3, 5, 15, 10, 20, 21. Okay. 3 1 जा 3, 5 कट नहीं होगा. 3 5 जा 15, 10 कट नहीं होगा. 20 कट नहीं होगा. 3 7 जा 20. Now start with the 5. 1 as it is. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 7 as it is. Now start with the 2. 1 1 1, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 7. Again 2. 1 1 1 1, 2 1 ja 2, 7. 7 1 ja 7. Each term becomes 1. Now let's take the LCM. What is the LCM? 3 into 5 into 2 into 2 into 7. Okay, 3 5 ja 15, 7 2 ja 14, 2 ja 28. और 15 into 28 is 420. What is the LCM here? 420. मुझे यहाँ पे सबका क्या बनाना है? 420 बनाना है. 420 बनाने के लिए 3 में कितने की मल्टीप्लाई होगी? सबको क्या बनाना है? 420. And this is done. Okay. 3 से 420 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई हुई है? 140 की मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर. 5 से 420 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई हुई है? 84 की. सो मल्टीप्लाइड बाय 2. जितने की मुझमें मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करी है उतने की ही मैं न्यूमरेटर में करती हूँ. तो डिनोमिनेटर में 5 में अगर 84 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा. तो मैंने न्यूमरेटर में भी सेम मल्टीप्लाई कर दी. 15 में अगर मैं
18 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 420 आ जाएगा, तो मैंने सेम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दी। 10 में 42, 20 में 21 और 21 में 20। Sorry, it's not 18, it's 28. Now you have to multiply them. 141 जा 140 अपॉन 420। 84 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 168 अपॉन 420। 8 4 जा 32, 32 का 2 3 कैरी गया, 4 2 जा 8, 9 10 11, 112 अपॉन 420। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 अपॉन 420। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 अपॉन 420। अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं तो आप साइड में रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है, आपके लिए इजी हो जाएगा। 6 0 जा 0, 6 2 जा 12 अपॉन 420। ओके, दीज आर द टर्म्स आई विल गेट। नाउ मैं इन्हें किस ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट करूँगी? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट करूँगी। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे छोटा, तो इन सब में मैं अगर सबसे छोटा देखूँ तो क्या आया? 105 आया। ओके, कितना आया? 105। सो सबसे पहले मैं क्या लिख लूँगी? 105 अपॉन 420। नाउ नेक्स्ट 105 के बाद इनमें से कौन सा दिख रहा है आपको? 112। 112 के बाद 120। ओके, 112 के बाद 120। उसके बाद कौन सी टर्म दिख रही है 120 के बाद? 26, देन 40, देन 168। 126, then 140, then 168. Now I will give the ascending order, ठीक है। लेकिन ये मुझे इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं मिला, तो मैं इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखूंगी कौन सी है। ओके, 105 की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है? 5 अपॉन 20। सो दिस इज़ द फर्स्ट नंबर। उसके बाद क्या है मेरा? 112। 112 की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है? 4 upon 15, that is on number 2. After that 120, that means 6 upon 21. After that 126, that means 3 upon 10. After that 140, that means 1 upon 3. And after that in the last 168, that means 2 upon 5. अब मैं देख लेती हूँ सब। 5 upon 20, then 4 upon 15, 5 upon 20, 4 upon 15. Third is 6 upon 21, then 3 upon 10, 6 upon 21, then 3 upon 10. After that 1 upon 3 and then 2 upon 5. 1 upon 3 and 2 upon 5. This is the ascending order and this is the answer we want in that. Okay, so the questions that are left in between are covered in this video. Go through these questions and just do them in your fair copy. That's all for today's class.